Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. So in this video we will complete the remaining part of chapter number 1, chemical reaction and chemical equation. Before this we have done combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction. So this is the time to complete the last two reactions, one double displacement reaction and the other one is oxidation reduction reaction. Last topics are corrosion and rancidity, but it was removed in the last session. So we will follow until the new guidelines of CBSE will come. Okay, so we will follow previous session syllabus जब तक हमको कोई CBSE की guideline नहीं आती है. So last two topics are left. First is double displacement and the other one is oxidation reduction reaction. So let's start double displacement reaction. Displacement reaction, I have explained that the reaction in which more reactive metal displaces less reactive metal. More reactive metal means which have strength, more strength. That metal, that element can replace. ठीक है, ये displace कर सकता है less reactive metal. How will you know that which metal will replace which one? So I write one table, that is reactivity series, and in reactivity series the element which I write down above, so they are more reactive, and the downward metals, they are less reactive metals. For example, potassium, sodium, magnesium, calcium, iron, zinc. So these are more reactive metals. The below down, copper, silver, gold, mercury. So these are less reactive metals. ठीक है, and the order in that series will decide that which metal will replace which one. Okay, the metal right above the element that will displace the lower one. Clear it is? So this is displacement reaction. Now double displacement reaction. Double displacement reaction. So today's topic first is double displacement reaction. Double displacement reaction is quite different from displacement reaction. Double displacement reaction are those reactions in which both the reactant exchange their ions. In reaction, we write the reactant left side and product right side. So the reactant, two reactants will be there. So both the reactant will exchange their ions. They will exchange their ions. For example, suppose I am taking one reactant which has two ions, cation and anion A and B, and the other one is CD. This is a compound which is having two ions, one positive and one negative, one cation and one anion. So what will happen? These are two reactants. These two reactants will exchange their ion and the compound will be AC plus BD. Here you can see that both the reactants have exchanged their ion. See. So this type of reaction is known as double displacement reaction. So first example of double displacement reaction, I am taking barium chloride. So what is the formula of barium chloride? It is BaCl2. So this is the formula of barium chloride. And barium chloride reacts with sodium sulfate. Barium chloride reacts with sodium sulfate. So here we will take aqueous solution. Means I will take barium chloride salt and I will dissolve this salt in water. Same as I will take sodium sulfate salt and I will dissolve in water. So the aqueous solution will be prepared of this salt. I will prepare aqueous solution of this salt. मैंने इनको prepare कर लिया. Now what will happen in double displacement reaction? Reactant will exchange their ions. Means Ba के साथ यहाँ पर chlorine था, so it will take SO4. Positive negative ion लेगा and negative positive ion लेगा. So this is positive ion. This will take negative ion of other reactant, and the product will be barium sulfate. Barium sulfate. And the next one is sodium chloride. So here what will form? Barium sulfate. अब
oxidation reaction. So if they are asking define double displacement reaction and give an example, so you can simply define it and write. You can write this example for double displacement reaction. One more example which we have done earlier, the second page of NCERT. We have done one vacation. I have already explained with the help of experiment. मैंने 2 टेस्ट ट्यूब ली थी और उनमें 2 सॉल्ट से. If you remember, मैं उसको वापस आपको शो करके दिखाती हूँ. मैंने क्या किया था? मैंने 2 टेस्ट ट्यूब ली थी. If you remember, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने कौन सा सॉल्ट लिया था? लेड नाइट्रेट. Aqueous solution of lead nitrates means मैंने सॉल्ट लिया and then I dissolve that salt in water. तो यहाँ पर मैंने कौन सा सॉल्ट लिया था? मैंने लिया था lead nitrate. What is the formula of lead nitrate? It is PbNO3 का whole of twice. So this is lead nitrate. Lead nitrate. And in the second test tube, potassium iodide. Potassium iodide salt लिया and I dissolve that salt in water. So I prepare aqueous solution of potassium iodide. So second reactant is potassium iodide. Okay, and these both aqueous solution was colorless. आपको दिखाया भी था मैंने कि दोनों ही सॉल्ट कैसे थे, उनके aqueous solution colorless थे, जैसे water होता है same as. Okay, but when I mixed these salts, तो क्या हुआ था? आपने ऑब्जर्व किया था ना, जैसे ही मैंने कलरलेस सॉल्ट को आपस में मिक्स किया था, एक बड़ा ही डार्क येलो प्रेसिपिटेट मुझे मिला था एंड दैट प्रेसिपिटेट वाज लेड आयोडाइड. यहाँ से लेड और यहाँ से आयोडीन, PbI2. इसका कैसा प्रेसिपिटेट बना था? इफ यू रिमेंबर, इट वाज येलो प्रेसिपिटेट, PbI2. ओके, और बाकी क्या बचा? KNO3. बैलेंस कर दो इक्वेशन. ओके, सो दिस वाज द सेकंड एग्जांपल. दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फर्स्ट एग्जांपल बेरियम क्लोराइड वाला एंड द सेकंड इज लेड नाइट्रेट. व्हिच यू थिंक इज मोर इजी, यू कैन राइट. ओके, क्लियर इट इज? राइट. सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ द लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. Oxidation reduction. Oxidation. Definition of oxidation. Simple, आपको नेम से ही पता लग जाएगा. Oxidation. So definition क्या होगी? Addition of oxygen. The reaction in which addition of oxygen क्या होगा? ऑक्सीजन ऐड होगी. क्लियर? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द अदर थिंग रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ये भी हो सकता है कि उसमें ऑक्सीजन ना हो, देन यू कैन चेक इट बाय द अदर फैक्टर दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. कि अगर उस रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी वो रिएक्शन क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी. Clear? So what is oxidation? Addition of oxygen and removal of hydrogen. What is oxidation reaction? Addition of oxygen and removal of hydrogen. Done? Okay. अब reduction की I will not write out the definition of reduction. Simply I can say it is opposite of oxidation. It is opposite of oxidation. ऑक्सीडेशन का क्या है? ये अपोजिट है. ओके, तो अगर मैं अपोजिट बोल रही हूँ, इट्स में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सो यहाँ पर ये 2 टर्म, यू हैव टू चेंज दीज 2 टर्म्स एंड यू विल गेट डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन plus removal of hydrogen, and reduction, what will happen? Removal of oxygen and addition of oxygen. Done?
Okay, so now we will do some example of oxidation and reduction. Addition of oxygen. Magnesium plus O2, it will give 2MgO. Okay. Copper plus O2 will give copper oxide. Done? Clear? So these are example of oxidation. Reduction का क्या होगा? N2 plus H2 will give NH3. So this is an example of reduction. और अगर मैं उसकी ऑपोजिट प्रोसेस लिखूं कि NH3 N2 and H2 दें तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है कि दोनों टर्म्स कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स हैं। इफ आई विल रिवर्स दिस रिएक्शन देन इट विल कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीडेशन। मींस NH3 को अगर हम हीट करें तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ से H2 निकल रहा है H2 देखो, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, सो इट इज ऑक्सीडेशन। जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा इट इज रिडक्शन। क्लियर? सेम एज अगर मैं इसको वापस लिख दूं, ये देखो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, दिस इज रिडक्शन। सिंपल। सिर्फ एक चीज अपने दिमाग में बिठाना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सिर्फ ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन लर्न करो, रिडक्शन की आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगी कि ये उसकी अपोजिट प्रोसेस है। डन? अब यू आर इन 10th स्टैंडर्ड। ओके, इतने सिंपल क्वेश्चन तो आपसे पूछे नहीं जाएंगे कि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन लिखो, रिडक्शन की लिखो, इक्वेशन लिख दो 10 से। नो, नोट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड एनसीईआरटी। मैंने कहा ना एनसीईआरटी की आपने सिंगल इक्वेशन भी छोड़नी नहीं है। एनसीईआरटी की एक एक रिएक्शन आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सो वन एग्जाम्पल, एक रिएक्शन है जो मैं आपको लिख के दे रही हूँ, कॉपर प्लस O2 it will give copper oxide plus H2 it will give copper plus H2. Very simple reaction. Copper plus oxygen will give copper oxide. What is the name of this compound? It is copper, and here the oxidation state of copper is 2. Why we have to mention oxidation state of copper? Because some compounds like copper, iron, they show more than one oxidation state. Copper जो है वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये 1 भी शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड 2 भी शो करता है। तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि यहाँ पे जो कॉपर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2 है। ओके, अगर मैं यही कहती कि इसकी 1 है तो क्या फॉर्मूला होता? देखो बेटा, 9th में आपने किया है, ये रहा कॉपर, ये ऑक्सीजन, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2, और अगर मैं इसकी 1 लेती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो फॉर्मूला बनेगा Cu2O। ओके, डन। तो ये कौन सा ऑक्साइड होता है? दिस विल बी कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड है? कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर कॉपर की वैल्यू 2 लेती हूँ, सो व्हाट विल हैपन? दिस विल सिंप्लीफाई, कटिंग हो जाएगी एंड CuO। सो दिस इज कॉपर 2 ऑक्साइड। क्लियर? सो दिस इज कॉपर 2 ऑक्साइड। ओके, एंड कॉपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा एंड कॉपर प्लस H2O बन जाएगा। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है? सिंपल क्वेश्चन, अ ब्राउन कलर मेटल व्हेन ऑक्सीडाइज। Whenever we talk about brown color metal, so without thinking anything, just write down it is copper. Copper
कॉपर जो है वो ब्राउन कलर का मेटल है। जब भी ब्राउन कलर का मेटल बोलते हैं बगैर सोचे आपने कॉपर को लिख देना है। सो दिस इज ब्राउन मेटल, ब्राउन मेटल। जब हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, दे कैन से ऑक्सीडाइज, दे कैन यूज द वर्ड बर्न। बर्न भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि बर्निंग में कौन सी गैस हेल्प करती है, ऑक्सीजन। तो अगर बर्निंग वर्ड यूज करते हैं तो भी इसका मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना। या कंबस्ट, कंबशन, कंबशन इज ऑल्सो यूज फॉर बर्निंग। तो यहाँ पर कॉपर व्हेन ऑक्सीडाइज इट गिव्स ब्लैक रेसिड्यू। कॉपर टू ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक, सो इट विल गिव ब्लैक रेसिड्यू। एंड रेसिड्यू का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, जो रह जाता है। जैसे घर में कुछ सब्जी वब्जी बनती है, जो आपका जला हुआ पोर्शन नीचे रह जाता है काफ़ी उसको बर्न करने के बाद, तो दिस इज ब्लैक रेसिड्यू। ओके, आगे बोलेंगे कि दिस कंपाउंड, इसको ए दे दिया, व्हेन वी रिएक्ट विद हाइड्रोजन इट गिव बैक टू कॉपर। ये वापस आपको ब्राउन मेटल दे दिया। राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। तो आपने पूरी इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। फिर वो पूछेंगे नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड हियर रिडक्शन। देखो रिडक्शन कैसे, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, यू कैन से हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रही है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो आप क्या लिखोगे, हियर ऑक्सीडेशन एंड दिस रिएक्शन इज रिडक्शन। ओके, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा इसमें से, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। देखो ये तो सिंपल एग्जाम्पल थे जहाँ पर ऑक्सीडेशन अलग हो रहा था, रिडक्शन अलग हो रहा था, और आपने इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लिया। इन सम रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। एक रिएक्शन में एक साथ होते हैं, देन व्हाट विल वी डू। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, सो इट विल गिव जिंक प्लस CO। ओके, हियर यू कैन सी जिंक ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू जिंक। जिंक ऑक्साइड से क्या बन रहा है, जिंक बन रहा है। ओके, जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है। तो यहाँ पर मुझे बताओ हो क्या रहा है, क्या ऑक्सीजन ऐड हो रही है, रिमूव हो रही है? ऑब्वियस है, रिमूव हो रही है। ओके, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। सो दिस इज रिडक्शन। ओके, यहाँ पर कार्बन से क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीन्स कार्बन के पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है। देख रहे हैं ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज ऑक्सीडेशन। तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, आपको एक इक्वेशन दे देंगे एंड दे विल आस्क कि नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, नेम द सब्सटेंस रिड्यूस। आपने राइट साइड से नहीं लेना है, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड। राइट साइड को छोड़ दो, आपने लेफ्ट साइड से लेना है। लेफ्ट साइड में आपने देखना है कि किसका रिडक्शन हो रहा है, तो ZnO से जिंक बन रहा है, रिडक्शन जो हो रहा है वो ZnO का हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, रिड्यूस्ड में ZnO। ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का हो रहा है। सो हियर यू विल राइट ऐसे करके 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, नेम द सब्सटेंस रिड्यूस। इट इज़ वेरी इजी, बट बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। यहाँ से वो उठा लेते हैं सब्सटेंस और यहाँ पर वो मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो होगा पैटर्न चेंज हो जाएगा। अगर मैं रिवर्स रिएक्शन देखूँ तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाती है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो वहाँ पर बच्चों से मिस्टेक हो जाती है। तो बेटर है यू विल टेक फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से लो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। वन थिंग मोर, द सेकेंड थिंग इज ऑक्सीडाइजिंग रीजन एंड रिड्यूसिंग रीजन। तो ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस तो आप इजीली निकाल लोगे। अब जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो
वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस्ड हो रहा है वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीडेशन करे, जिसके पास ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन किसके पास है? कार्बन के पास है। किसके पास है? जिंक के पास है। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल, मैग्नीज ऑक्साइड plus HCl will give MnCl2 plus H2O plus Cl2। ओके, तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन गिवन है। अब आपने क्या करना है, पहले देखो मैग्नीज से मैग्नीज का चेंज ऐसे आएगा। बता सकते हो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है या रिमूव हो रही है? दिख रहा है आपको? O2, इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है। तो ये क्या है? रिडक्शन। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो दो चीजें हैं, HCl से H2O भी बन रहा है, HCl से Cl2 भी बन रहा है। बेटा किसी भी टर्म में लो, आंसर वही निकलेगा। देखो पहले मैं ले रही हूँ HCl को H2O के साथ, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना, ये क्या है? ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन। क्यों? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं Cl2 के टर्म में लूँ तो भी बेटा यही आंसर निकलेगा। देखो HCl से क्या बन रहा है? Cl2 बन रहा है, मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, और तब भी आंसर क्या आएगा? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है? HCl। रिड्यूस्ड कौन हुआ है? MnO2। अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछूं तो जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है MnO2, और अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट पूछूं तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है, कोरोजन एंड ट्रांसिटिविटी, दैट वाज रिमूव्ड फ्रॉम लास्ट सेशन, सो वी विल नॉट एक्सप्लेन इट। ठीक है, डिस्कस इट। एंड अगर कोई नोटिफिकेशन आती है CBSE की तरफ से कि ये टॉपिक्स हैं, दिस टॉपिक आर आल्सो इंक्लूडेड इन द सिलेबस फॉर दिस सेशन, so we will do afterwards. Clear? So goodbye and have a nice day.